Hello and good morning everyone. So today we'll going to discuss the question paper from our advanced organic synthesis, which is from MSc second year semester 3, belong to the DSE 3 of 2. Code is CHE304, that is organic special 1, which is on held according to the timetable on 10th of January 2025. So let's see the discussion particularly on that paper. A very interesting paper. I saw that paper. Most of the questions are very interesting because they are from reputed reference book like Claydon, Michael Nance, Caruthers, and those who are really interested in organic synthesis. I think that person or that fellow is very happy when he's seen the paper now, because very interesting questions like the level of the question paper is again very nice, because it is interesting. And you know that in synthesis, uh, what one can say, you must know the role of actual reagent now, because the synthesis is based on the reagents only. Okay. And in that paper there are two chapters particularly, they're from the category of what heterocyclic chemistry now. Okay, so let's discuss the one by one. Here the note is all questions are compulsory, so we also uh, take the highlight of all questions. Now see the first question. The first question is basically come from the reduction family, right? That is the lithium aluminum hydride. So most of you know that this lithium aluminum hydride is versatile reducing agent. Is a what? Versatile reducing agent. And structurally this is what the lithium plus, okay, and what, AlH4 negative. So structurally you can see this is what, AlH4 negative now. So this is a complex, okay, and it is called as a lithium tetrahydrido aluminate 3. Okay, so and if you see the structure of that lithium aluminum hydride, so you can see it is a tetra coordinated H H H H. Here must be the negative charge, and this is what lithium plus. Now see, this reagent is very reactive because it having lithium as well as the aluminum, both are reactive metals. And अगर वैसे देखा जाएगा तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, ये पोलर होता है, इट्स हाईली पोलर बॉन्ड, एंड ड्यू टू दैट रीजन इट्स हाईली रिएक्टिव. सो ऑलवेज वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग दिस केमिकल. एक तो हमको यहाँ पर ड्राई कंडीशन मेंटेन करनी होती है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसमें ड्राई ईथर यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट. ओके, so now see this bond is used particularly the reactive part जो रहेगा आपका, so from which we can say hydride ion is a releasing from the aluminum hydride, and that H negative ion is a source of a nucleophile, is a source of a nucleophile. और ये कई सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट हो सकता है. दैट्स वाई इसको हमने वर्साटाइल ऑर्गेनिक रिएजेंट बोला गया. लेट्स एग्जांपल सपोज कार्बोनिल की बात करेंगे अपन. सो कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अ अल्कोहल नाउ. ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है. एंड देर आर मोस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स अंडरगो द रिडक्शन पर्टिकुलरली यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसीलिए इसको वर्साटाइल रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया है, राइट. अब यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है कि एक्चुअल में इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं. वन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस द 4 इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट द कार्बोनाइल ग्रुप. ओके, सिमिलरली ये और क्या करता है, ये बेसिकली अगर हमारे पास कोई एस्टर कंपाउंड होगा या अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. अल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट द प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट द सेकेंडरी अल्कोहल. In addition to that, carboxylic acid converts into alcohol, acid halide to alcohol, ester to alcohol, amide to amine. Okay, so likewise इसके कई सारे एप्लीकेशंस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. इवन प्रोपार्जिलिक अल्कोहल का ई अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. नाउ सी व्हाट इज प्रोपार्जिलिक अल्कोहल. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपार्जिलिक अल्कोहल, and propargylic alcohol get converts into what the e alcohol. Okay, this is also the well known application of the lithium
एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, सो एटलीस्ट आपको 5-7 जो भी एप्लीकेशन है एज पर द 4 मार्क का इसको वेटेज दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसको सॉल्व करना था यहाँ पर, राइट। सो आपको कुछ मेन एप्लीकेशन को आपको उसका हाईलाइट करने, इवन कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है वो हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, राइट। ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है जो 2 into 3 दिया है। 2 into 3 का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन को कितने मार्क होंगे, 2 मार्क होंगे। नाउ सी दिस ammonium cerium is there and nitrate is there, that's reagent is called as ceric ammonium nitrate। क्या नाम है इसका, ceric ammonium nitrate। so ceric ammonium nitrate is a oxidizing agent, sorry, it is an oxidizing agent, it oxidizes alcohol। अब यहाँ पर ये अल्कोहल है आपका प्राइमरी एंड दिस इज व्हाट द सेकेंडरी। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का एक एप्लीकेशन ऐसा है कि अगर आपके पास 2 अल्कोहल अगर होंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को प्रीफरेंस करता है कंपेयर टू द प्राइमरी, राइट। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल का आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट दिस वन, एंड फाइनली यू विल जो पहला जो आपका अल्कोहल है आपका वो इंटैक्ट रहेगा। ओके, इसको हम कीमोसेलेक्टिव बोल सकते हैं। Now the next one is what the MnO2 in sodium cyanide, okay, and acetic acid is given, methanol is there at 20 to 25 degrees Celsius temperature। You know that manganese dioxide is a chemoselective reagent, और chemoselective में स्पेशलिटी क्या होती है कि आपके पास अगर सेकेंडरी प्राइमरी अलाइलिक बेंजाइलिक अगर होंगे तो ये MnO2 एंड Ag2CO3, रिमेंबर दिस 2 रिएजेंट, MnO2 और दूसरा कौन है आपका Ag2CO3, ये 2 रिएजेंट ऐसे हैं जिसको हम कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट बोलते हैं, जो क्या करते हैं अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक और वन कैन से बेंजाइलिक अल्कोहल को पहले प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज करेंगे कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी, एंड दैट्स व्हाई हियर इज ओनली वन अल्कोहल इज देयर। ओके, यहाँ पर आपका अलाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है तो आपको इसका ही ऑक्सीडेशन करना है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट दिस प्रोडक्ट इज देयर। ओके, तो ये ऐसे आपका यहाँ पर अल्डिहाइड हो जाएगा एंड हियर इज वन हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट टू दैट आइडॉक्सी बेंजोइक एसिड, दैट्स कॉल्ड IBX। ओके, अब IBX जो है ये 1.2 इक्विवेलेंट दिया है, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट ही आपको यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट कन्वर्ट्स वन ऑफ दी अल्कोहल टू व्हाट दी कार्बोनाइल, एंड दैट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आपकी हो जाएगी। यहाँ पे देखो पहली स्टेप क्या हो सकती है, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, इफ अगर वो एक्सेस में दिया जाता है तो फिर वो कार्बोनिल कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करता है, बट एक्सेस में नहीं है तो सिंपल ऐसे दिया हुआ है तो ये आप ये कर सकते हैं। नाउ सी यू नो दैट दिस OH इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, सो इट विल बी रिएक्ट ऑन टू द कार्बोनाइल एंड सो इट विल फॉर्म द लैक्टोल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सो यू विल गेट दी लैक्टोल इज ए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऐसा आपका बनेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट यहाँ पर लिखता हूँ। सो लुक एट दिस 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी 2 मार्क। आपको एक प्रोडक्ट जो है आपको कितने मार्क के लिए दिया गया था, यहाँ पे 2 मार्क के लिए दिया। ये पहले का प्रोडक्ट ये रहा, दूसरे का प्रोडक्ट आपका ये रहा, एंड द थर्ड वन इज बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ओके, चलिए, सो ये क्वेश्चन हमारा था 6 और 4 10 मार्क के लिए। अब इसको और में क्या दिया है पहले हम उस पर फोकस करते हैं। और में भी सेम 2 into 3 यानी कि 2 मार्क के लिए एक प्रोडक्ट आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका KBHSBU thrice, दैट्स कॉल्ड द सेलेक्ट्राइड, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट इट इज अ बल्कियर वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। ओके, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सो हियर यू कैन सी दिस इज बोरॉन हाइड्रोजन, एंड हियर सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया है यहाँ पे, ऐसे वाला इसका जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ऐसे वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड सी दिस इज व्हाट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज व्हाट द K सेलेक्ट्राइड इसको बोला जाता है। अब ये ऑब्वियस बात है कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के जैसा दिखता है, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्या किया, ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हुआ है, बट बेसिकली 3 यहाँ पर आए। नाउ सी 1 इक्विवेलेंट हमने लिया, और ये इतना स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, इसको हम सेलेक्टिव बोल सकते हैं। बल्कियर होगा मतलब सेलेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, और ये 1,4 एडिशन के लिए बहुत फेमस रिएजेंट है, राइट। इट कन्वर्ट्स कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल इनटू आइसोलेटेड वन, सो दैट मीन्स द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट दिस प्रोडक्ट नाउ। तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर जो है ये रहना चाहिए इसके अंदर, बिकॉज इट इज सेलेक्ट्राइड, सो इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस व्हाट दी। देखो आपका एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस क्या हुए, आपके चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। सो वी चेंज द कलर फर्स्ट,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मॉइटी है ये वाला, ये यहाँ से आपका रिड्यूस हो गया यहाँ पर, राइट। सो कन्वर्जन इनटू व्हाट द आइसोलेटेड कार्बोनाइड्स, सो दैट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ दी, या फिर जहाँ पर जो रिएक्शन आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पॉसिबल नहीं है वो आपका सेलेक्ट्राइड आपका यूज़ करेगा। चलिए आगे आते हैं अपन। ऑक्सीडेशन कैटेगरी से आपका ये क्वेश्चन था आपका, 2 इक्विवेलेंट हमने पीसीसी यूज़ किया है यहाँ पे। पीसीसी मतलब होता है pyridinium chlorochromate, okay, which is developed by Corey, E.J. Corey. They are recently developed reagents from the chromium category, because chromium क्या होता है, chromium के कई सारे reagent हमने देखे होंगे, जोन्स है, सैरेट होगा, ओके, कोलिन्स होगा, सो क्रोमिक एसिड होगा, ठीक है। ये सारे reagents का इनका एक लिमिटेशन क्या है, बाई प्रोडक्ट इज़ वेरी टॉक्सिक। नाउ सी पीसीसी जनरली वाइडली यूज्ड है, पीसीसी और पीडीसी, ये दो रिएजेंट हैं जो कोरी के रिएजेंट हम जिसको बोलते हैं कोरीज रिएजेंट, एंड द रिएजेंट्स आर सेलेक्टिवली कन्वर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू रिस्पेक्टिव कार्बोनाइड। अब ये जो आपको कंपाउंड दिया है दिस इज टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल, क्या दिया है आपको, दिस इज व्हाट टर्शियरी, और साथ में कौन है आपका अलाइलिक पोजीशन पे आपका दिया हुआ है। And PCC converts tertiary allylic alcohol into what the conjugated carbonate. So it is a rearrangement reaction. मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ मैं आपको नाम बताता हूँ कि ये कौन सी रिएक्शन में जाना चाहिए, सो आप उसको रिएक्शन को एक बार देख सकते हैं। नाउ सी this converts into, now you can see the double bond here and the carbonyl will be here now. Conversion of tertiary allylic alcohol into alpha beta unsaturated carbonyl with the migration, alpha beta unsaturated carbonyl compound, and that well known reaction is there, that is called as a Babler oxidation. क्या नाम है इसका, Babler oxidation. Remember the name which is very interesting और कई सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। सो Babler oxidation एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल, ओके, और टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है ये पीसीसी के प्रेजेंस में होता है, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द कंजुगेटेड कार्बोनाइल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है हमारा ZnBH फॉर ट्वाइस, यानी कि जिंक बोरोहाइड्राइड। सो जिंक बोरोहाइड्राइड इज अगेन सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट। अब यहाँ पर फंक्शन ग्रुप क्या दिखता है तुमको, एक तो अमीन है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और क्या करेंगे अपन रिडक्शन, अमीन का रिडक्शन तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है वो, बट कार्बोक्सिलिक एसिड कैन कन्वर्ट्स इनटू ए न्यू फंक्शनल ग्रुप ना। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कन्वर्शन है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल में करने का काम सेलेक्टिवली जो है ये आपका कौन करता है, जिंक बोरोहाइड्राइड करता है। सो एंड दैट इज द व्हाट मेन एप्लीकेशन ऑफ दैट रिड्यूसिंग एजेंट ना, ओके। सो ये उसका आंसर रहा। तो देखो 2 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादातर इसमें मेहनत है नहीं कुछ में, सिंपली आपको रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए, तब आप आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, राइट, ओके। चलिए आगे आते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन ऑफ द 4 मार्क। 4 मार्क के केस में क्या होना चाहिए, नाउ सी इन दिस 4 मार्क क्वेश्चन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिव द synthetic applications of the DDQ in organic synthesis. Now what is DDQ? Now DDQ is a one can say it is a oxidizing agent. DDQ पता है आपको, DDQ कौन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रक्चरली अगर हम बात करेंगे DDQ ऐसा होता है, it is a benzoquinone moiety, it is a quinone moiety, and at some 2 and this 3 position there is what the chlorine, okay, and at 5-6 position there is a cyanide. So 2,3 dichloro 5,6 dicyano the quinone, benzoquinone. So basically it is called as a DDQ now, and it is one can say, अब देखो कितने Cl लगे हुए यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास 2 Cl लगे हुए, there are 2 chlorine groups are there now, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर साइनाइड लगा हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है, और आपके पास कॉन्जुगेट, इट इज़ एन हाईली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, एंड वन कैन से इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, राइट, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका जो मेन काम क्या है, इसका मेन काम है इट इज यूज्ड फॉर द डीहाइड्रोजनेशन। देखो पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इवन इट इज यूज फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पस, ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन करता भी है ये, ऑक्सीडेटिव क्या करेगा आपका साइक्लाइजेशन भी करता है, ठीक है। आप डिटेल में जाओगे तो आपको इसके कई सारे एप्लीकेशंस आप माइकल लांस में, कैरोथर में आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन। सो और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका एरोमेटाइजेशन,
व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द एरोमेटाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि हाउ इट इज यूज पर्टिकुलरली फॉर द रिमूवल ऑफ पीएमबी ग्रुप, यानी कि आपको डी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपको क्या है आपके सिलेबस में, डी प्रोटेक्शन, और डी प्रोटेक्शन के वक्त जो है हम DDQ कहीं जगह पे यूज़ करता है, उसका नाम है, जिस ग्रुप को रिमूव करता है वो है आपका पैरामिथॉक्सी बेंजील है। ओके, सो यानी कि इस ग्रुप को निकालने का वो काम करता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम ये रिएजेंट यूज़ करेंगे, जब वो हाइड्रोजन को अपने तरफ एक्सेप्ट करता है, सो इट विल बी कन्वर्ट्स इनटू व्हाट द क्यूनॉल। क्या बनेगा वो, जब वो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद इट विल कन्वर्ट्स इनटू व्हाट द क्यूनॉल। नाउ क्यूनॉल मीन्स, नाउ यू कैन सी द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द DDQ एंड द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द DDQ। नाउ सो जो पहले जो लिखा हुआ है वो उसका कौन सा फॉर्म है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये कौन है आपका, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ जो है आपका दिस इज व्हाट दी रिड्यूस्ड फॉर्म है आपका, ये क्या है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इस तरह से जो है वो DDQ काम करता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ओके, सेम क्वेश्चन नीचे पूछा गया था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये वाला, एंड इन दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली वो जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका गया कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछा गया है। provide a mechanism for the removal of methoxybenzyl protecting group from an alcohol using DDQ. The structure of the D-protected alcohol is given. Be sure to show all the products. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पैरामिथॉक्सीबेंजील मतलब क्या होना चाहिए, सो पैरामिथॉक्सीबेंजील का मतलब होगा आपका, सो देयर मस्ट बी अ मिथॉक्सी ग्रुप एंड एट पैरा पोजिशन हियर विल बी अ CH2। ये हो गया आपका बेंजील फंक्शन, ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ बेंजील, इसको बेंजील बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ तो आगे जो भी दिया जाएगा, लेट्स एग्जांपल यहाँ पर मैं OR लिखता हूँ सिंपली, मतलब अल्कोहल का रिमूवल करके यहाँ पर ये बना हुआ है, और इस ग्रुप को ब्रेक करने के बाद DDQ क्या करता होगा, इट इज used particularly to remove this group now, and that's why in organic synthesis we are using this DDQ ना। ओके, सो DDQ का ये एक एप्लीकेशन है कि जो हम इसको रिमूवल ऑफ PMB ग्रुप बोलकर इसको निकाल सकते बाहर, और एज इट इज तुम्हारा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर बाय प्रोडक्ट तुम्हारा अल्कोहल बनेगा प्लस और आपका पैरामिथॉक्सीबेंजील। पैरामिथॉक्सीबेंजील का मतलब क्या हो गया, दिस इज मिथॉक्सीटोलिन, ये ऐसा, या 4-मेथिल-टोलिन, हम ऐसा भी उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट है आपका, गिव द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरस हैलाइड एज अ स्टीरियो सेलेक्टिव ओलिफिनेशन रिएक्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। So first of all, what is phosphorus halide? Phosphorus halide is a 1,2 dipolar neutral molecule, and where carbon bears the negative charge, phosphorus bear the positive charge. 1,2 dipolar बोला है इसको, क्या बोला है इसको, 1,2 dipolar। Okay, this is the structure of what phosphorus halide। और अगर हम इसका आइसोमराइजेशन अगर हम करते हैं, so this will is called as a halide। halide का मतलब होता है 1,2 dipolar आना है, और यहाँ पर अगर हम इसको आइसोमेरिज्म में डालते हैं इसको, सो बेसिकली अगर हम इसका आइसोमराइज स्ट्रक्चर निकालेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ फॉस्फोरस येलिन, ये क्या हो जाएगा, येलिन। अब हम अम्पोलोंग कंसेप्ट में इसको पढ़ते हैं, इन अम्पोलोंग कंसेप्ट पर्टिकुलरली वी आर सीन दैट क्या होता है यहाँ पे अम्पोलोंग कंसेप्ट में हम कार्बन की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। नाउ सी दिस नेगेटिव चार्ज इज अ सोर्स ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इट कन्वर्ट्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू अ ओलेफिन। सो नाउ सी दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी रिएक्ट, नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ रिएक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी रिएक्ट ऑन टू द हियर, ओके, एंड इट विल फॉर्म द 4 मेंबर रिंग। नाउ अब 4 मेंबर रिंग कैसे बनेगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज व्हाट कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये मेरा कार्बोनिल है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है इसके साथ में, दिस इज व्हाट कार्बन फ्रॉम द हैलाइड, एंड हियर विल बी द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पे स्टिल कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू नो दैट, रिमेंबर फॉस्फोरस की जनरली जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई यू कैन हैव दिस स्ट्रक्चर, एंड फाइनली यू विल गेट द 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नाउ अब हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये साइक्लिक है और इसके साथ में इसमें हेट्रोएटम प्रेजेंट है। कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट है, कार्बन एंड फॉस्फोरस, और इसमें 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, इसलिए
और 4 मेंबर रिंग का हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम इसको नॉमेनक्लेट करते हैं तो इस कंपाउंड को बोला जाता है ऑक्साफॉस्फेटीन। ईटेन कब यूज करते हैं अपन? जब आपकी रिंग 4 मेंबर होती है। ऑक्सा क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। फास्फा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें फास्फोरस है। सो दिस कॉल्ड द ऑक्साफॉस्फेटीन नाउ, एंड लेटर ऑन इसको बीटाइन बोला जाता है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ बीटाइन कॉम्प्लेक्स, एंड लेटर ऑन दिस विल बी कॉल्ड एज अ ऑक्साफॉस्फेटेन, फॉस्फेटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर? नेक्स्ट है कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस की अफिनिटी ज़्यादा होती है किधर? ऑक्सीजन की तरफ। सो दे विल फॉर्म पीओ बॉन्ड विच इज़ अ स्टेबल बॉन्ड। एंड फाइनली व्हाट पीओ बॉन्ड अगर आपका बनता है, सो दिस रिंग विल बी क्लीव एंड इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नाउ यू कैन सी फॉस्फोरस एलाइड का जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले तो ओलिफिनेशन में जाता है, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपका फॉस्फोरस एलाइड कैसा है। आपका फॉस्फोरस एलाइड कैसा है? स्टेबलाइज्ड है या डिस्टेबलाइज्ड? अगर वो स्टेबलाइज्ड है, व्हाट इज मीन बाय स्टेबलाइज्ड एंड डिस्टेबलाइज्ड? मीन्स आपका जो सपोज लेट्स से दिस इज माय फॉस्फोरस एलाइड एंड व्हेन द कार्बन of that halide when it is attached with electron withdrawing group now, so then that negative charge can be stabilized, so इसको हम stabilized Wittig region बोल सकते हैं। और phosphorus halide आपका जो है अगर वो डोनर को अटैच होगा, so then in that case it is called as a destabilized, क्योंकि आपको पता है कि कार्बेनियन को स्टेबलाइज कौन कर सकता है? कार्बेनियन को स्टेबलाइज कौन करेगा? आपका विड्रॉइंग ग्रुप करता है स्टेबलाइज्ड। ओके। अब अगर हमने ये दो रिएजेंट अगर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो, so if I use this reagent for the when treatment with the any carbonyl compound, generally the product is what? E alkene। देखो आपको क्या मिल रहा है? E alkene प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। आप किसी भी रेफरेंस बुक निकाल के इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। और अगर हमने ये वाला यूज किया है, इफ आई यूज दिस डोनेटिंग ग्रुप वाला अगर हमने लिया है, यानी कि हमने क्या लिया है? डिस्टेबलाइज सल्फर एलाइड अगर हमने लिया है, तो हमको प्रोबेबली क्या मिलता है? Z alkene हमको मिलता है। You can see the you can see the mechanism from any literature, any reference book। और इसीलिए इसको स्टीरियो सेलेक्टिव ओलिफिनेशन बोला गया है। अब स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं? व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन? द रिएक्शन वेयर इट गिव्स स्टीरियो सेलेक्टिवली वन स्टीरियो आइसोमर, यानी कि आपको 100% या फिर मैक्सिमम परसेंट में आपको क्या मिलेगा? Z आइसोमर मिलेगा। और Z एंड E क्या है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसीलिए फॉस्फोरस एलाइड का जो यूज़ है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, वो स्टीरियो सेलेक्टिव ओलिफिनेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मेन मैकेनिज्म तो मैंने बताया इसका कि ये ऐसा होता है, बट अगर आप एलाइड चेंज करते हैं तो ये दैट आल्सो कन्वर्ट्स इनटू द नेक्स्ट वन। चलिए आगे। अब इसका दूसरा यूज़ क्या है? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ वुड यू यूज़ सल्फर कंटेनिंग रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो है, ये जो पहले था आपका सल्फर एलाइड, फास्फोरस एलाइड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सल्फर एलाइड। अब सल्फर एलाइड हमारे पास क्या होता है? अगेन सेम केमिस्ट्री इज देयर नाउ, वापस से वही आएगा आपका। इट इज 1,2 डाइपोलर सल्फर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 नेगेटिव। नाउ सी दिस इज वन रिएजेंट दैट्स कॉल्ड द सल्फर रिएजेंट, ओके, या सल्फर एलाइड इसको हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है आपका? दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी रिएक्ट ऑन टू द कार्बोनाइल, this negative charge is going to react on the carbonyl, it will bond will be open to oxygen। चलिए आगे बताइए क्या होना चाहिए? now it will form the intermediate। क्या बनेगा आपका? now I will show you the intermediate। so this is what my methyl group। बताइए यहाँ पे क्या हो गया? now see this is what O negative। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ हमारा एलाइड लग गया। और कैसे है एलाइड आपका? now you can see this is what CH2, और ये है तुम्हारा डाइमिथिल सल्फाइड वाला ग्रुप, जिस पर सल्फर पे क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। अब डेफिशिएंसी कहाँ पर है? डेफिशिएंसी इज ऑन द सल्फर, सो दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी रिएक्ट ऑन टू द कार्बन एंड दिस विल बी फ्री नाउ। एंड सो अल्टीमेटली आपको इपॉक्साइड जो है वो एज ए आपका प्रोडक्ट मिलता है। सो सल्फर एलाइड से हम जो है इपॉक्सीडेशन भी कर सकते हैं, इसलिए आपने इपॉक्सीडेशन रिएक्शन में देखा होगा। सो दैट फॉर्म द इपॉक्साइड ना विथ इंक्रीजिंग वन कार्बन। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका एक कार्बन आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला, यानी कि अल्डिहाइड का कन्वर्शन। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब होमोलोगेशन हो गया है, मतलब एक कार्बन आपका बढ़ गया। तो अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर एक कार्बन हम कैसे इंक्रीज करेंगे? सो यू नो दैट द अम्पोला केमिस्ट्री फ्रॉम द डाइथाइन। आपको डाइथाइन पता है?
अब डायथेन के केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम डायथेन बनाते हैं, ठीक है, मैं उसका प्रिपरेशन नहीं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, पहले तो ये ले लिया हमने 1,3 डायथायोल, और उसके साथ हमने रिएक्शन की है किसकी, एसिटाल्डिहाइड की या RCHO की, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट द एसिड, लेविस एसिड BF3 वगैरह हमने लिया है। तो हमको क्या मिला है यहाँ पे, दैट विल फॉर्म दिस कंपाउंड R and H। अब अम्पोलॉन्ग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन शो सम काइंड ऑफ अ रिएक्टिविटी ना, ये वाला, बिकॉज अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन निकालता हूँ, सो देन जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा दैट कैन बी स्टेबलाइज्ड एंड दैट्स व्हाई द कार्बन नेचर विल बी चेंज ना। सो अब अगर मैं यहाँ, लेकिन अब उसके लिए आपको क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लिथाइटेड बेसिस यूज़ करते हैं, मतलब लिथियम वाले, और हमने ये अगर यूज़ किया, सो देन नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका, in that next then you will get the negative charge and that is basically called as a polarity change in polarity now, यहाँ पे इसकी, इसलिए उसको अम्पोलॉन्ग बोला जाता है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, what we are using here now, okay। अब यहाँ पर आपको किसी रिएक्शन किसी करनी है आपको, we have to take the reaction of RX now। RX मतलब कौन हो गया आपका, RX मतलब सिंपल अल्किल हैलाइड। now see this negative charge is going to be react on here and X will be free now। चला गया X आपका बाहर। चलिए, क्या बनता है प्रोडक्ट आपका, now see this is what सल्फर, यहाँ पर मेरा R आ गया और यहाँ पर मैंने दूसरा R लगा दिया, हो गया। अब मैं इसको डीप निकालता हूँ इसको, आई हैव टू ब्रेक दिस वन एंड फॉर दैट आई हैव टू यूज़ द मर्क्यूरी नाउ। अब मर्क्यूरी की यूज़ करते हैं बिकॉज अगेन सल्फर की एफिनिटी, राइट। अब इसको मर्क्यूरी के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करने से क्या हो जाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड O R हो जाएगा एंड प्लस बाई प्रोडक्ट आपका जो भी रहेगा वो बनेगा। अब यहाँ पर R क्या लेना है तुमको, ये तुम्हारा पूरा R रहेगा, कौन सा, 1 2 3 4 कार्बन वाला आपको R लेना है। कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला हमने R लिया है। नसी 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा कौन है आपका, R है। बस आपको इस R के जगह पे वो पूरा लगा दो और ये इस R के जगह पे आप मिथिल लिख दो, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट। सो ऐसा हम डायथेन केमिस्ट्री से उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस इज अ वेल नोन रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिक सिंथेसिस विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। बेस हमने यहाँ पर लिया है, नाइट्रो ग्रुप के बाद वाला कार्बन एक्टिव मिथिलिन में जाता है, दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन निकालने के बाद आपको कार्बेनियन बनेगा एंड कार्बेनियन की स्टेबिलिटी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर NO2 प्रेजेंट है। एंड नाउ दैट नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन टू द अल्डिहाइड। किस पे रिएक्ट हो रहा है आपका वो, इट गोइंग टू रिएक्ट ऑन टू द अल्डिहाइड, ठीक है। और अल्डिहाइड पे रिएक्ट होने के बाद आपका यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो जाएगी, नाउ सी दिस इज व्हाट NO2, और ये वाला कार्बन आपका इसके साथ जुड़ गया, मीन्स इट इज O नेगेटिव एंड हियर विल बी द pH। फाइनली हम इसको प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करने के बाद आपका वो OH हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, दी OH, दिस इज माय pH एंड हियर विल बी व्हाट, NO2। यू नो दैट अगेन हियर एसिडिक प्रोटॉन इज देयर नाउ। E1CB मैकेनिज्म हमने पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, और E1CB मैकेनिज्म के थ्रू हम यहाँ पर वाटर को एलिमिनेट करेंगे, मीन्स दिस, और ये जाएगा आपका कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, this is pH, here is my double bond, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सो दिस इज वेल नोन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज एन हेनरी रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन का नाम है आपका हेनरी रिएक्शन। हेनरी एल्डोल इसको समटाइम इसको बोला जाता है, इसलिए आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक द एल्डोल कंडेंसेशन, बराबर है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की जैसे ही रिएक्शन है आपकी, बट दिस रिएक्शन इज कन्वर्ट्स एनी नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स, बट इट शुड हैव द एक्टिव मिथिलिन ग्रुप ना, ओके। तो ये वहाँ पर कंसिडर करना होता है, और आपको ऐसा आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपको निकालना होता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन, जिसमें आपको पूछा गया कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन दैट्स कॉल्ड द जैकबसन इपॉक्सीडेशन एंड शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। नाउ सी, जैकबसन इपॉक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि अनफंक्शनलाइज ओलेफिन को ये फंक्शनलाइज करता है,
मीन्स इट कन्वर्ट्स, इसको समटाइम जैकबसन कैट्सुकी इपॉक्सीडेशन भी बोला जाता है, जिस रिएक्शन में इनैंशियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन होता है, राइट। और अनफंक्शनलाइज्ड अल्काइल या अरील सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स का जनरली हम इसमें रिएक्शन देखते हैं अपन जनरल। हाँ, इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, और जो कैटलिस्ट जो है ना एक बल्कियर कैटलिस्ट है जिसको हम जैकबसन कैटलिस्ट बोलते हैं, और उस कैटलिस्ट को लेकर इस रिएक्शन ये रिएक्शन को प्रोसीड किया गया। और जनरली इसमें जो मेटल होते हैं कैटलिस्ट में वो मैंगनीज होता है, राइट। दैट मैंगनीज इज यूज पर्टिकुलरली इन द कोर सेंटर, ठीक है। मेन रिएक्शन क्या है, मैं शॉर्ट में रिएक्शन बताता हूँ आपको, होप आपने रिएक्शन प्रोसीड की होगी। सी दिस इज अनफंक्शनलाइज्ड ओलेफिन, राइट। यहाँ पे आर के जगह पे आप ले सकते हैं अराइल, अल्किनाइल, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप वहाँ पर ले सकते हैं, और एक आर जो रहेगा आपका बल्कियर ग्रुप रहेगा। और यहाँ पर हमने जो कैटलिस्ट यूज़ किया है वो है आपका जैकबसन कैटलिस्ट, जिसकी अगेन इनैंशियो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। जनरली इस रिएक्शन को DCM में प्रोसीड किया जाता है, और इसमें सॉल्वेंट आपका जो है इसके साथ में हम एक्यूएस NaOCl यूज़ करते हैं। नाउ सी इट कन्वर्ट्स इनटू द इपॉक्साइड, नाउ it converts into the epoxide. So that is the main application of this reaction now, ठीक है। इसमें एक कैटलिस्ट यूज किया गया, और जिस कैटलिस्ट का नाम है आपका जैकबसन कैटलिस्ट, ओके। चलिए अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। कौन है आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, ये भी हमने शायद इपॉक्सीडेशन में पढ़ा होगा, इसको शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन बोला जाता है, ओके। अब यहाँ पर शार्पलेस में एक चीज़ कॉमन क्या होती है कि रिक्वायरमेंट है आपका अलाइलिक अल्कोहल, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल आपका रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है इस केस में आपका प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, ये रिक्वायरमेंट है। अब इस रिएक्शन के शॉर्ट मिनोमिक्स क्या हो सकते हैं, मिनोमिक्स इस रिएक्शन के ऐसे है कि आपका जो OH है उसकी पोजीशन देखी जाती है, और हमने जो रिएजेंट यूज़ किया है दैट्स कॉल्ड द डाइथिल टार्टारेट, प्लस एंड माइनस, plus diethyl tartarate and what the minus DET now in the presence of the titanium isopropoxide. इसको क्या बोला जाता है, इट इज asymmetric epoxidation reaction, जिसमें आपके पास रिएजेंट 3-4 होते हैं। एक तो DET आ गया, उसके बाद आ गया टिटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, TiOIPR कितना 4, टिटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ओके। ये सब इसमें यूज़ किया था, एंड जो DET जो है ना वो कायरल लिगैंड है इसके अंदर। अब देखो इफ़ अगर हमारा OH, मैं तो सिंपल सा आपको बताता हूँ कि OH की पोजीशन देखी जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम उसका प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। अगर OH आपका राइट साइड में होता है सो देन प्लस DT विल शो द प्रोडक्ट फ्रॉम द बैक साइड। कहाँ से देगा आपका प्रोडक्ट आपका ये, सो यहाँ पे इसको OH कर दो, यहाँ पे कार्बन बढ़ा के, सो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और अगर सेम कंडीशन रहेगी यहाँ पर, सो उस केस में हम आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रंट साइड से बना सकते हैं इसको, राइट। ऐसा आपका रहेगा। सो प्लस DT गिव्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द अल्फा एंड बीटा इपॉक्साइड, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये रिवर्स होता है, इफ योर OH इज फ्रॉम दिस साइड, देन your plus DT will be give the front side and minus DT will give the what the back side, ओके। ऐसा ये यहाँ पर बता सकते हैं इसके अंदर। चलिए, सो दिस इज द रिएक्शन पर्टिकुलरली विच इज कम फ्रॉम द असिमेट्रिक सिंथेसिस। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस क्वेश्चन में है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस में पहला है बाइनल। बाइनल कौन होता है, बाइनल जो है ना ये भी रिडक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाइनल बेसिकली क्या है, एक रिएजेंट है, राइट, जो कि रिडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ असिमेट्रिक। एक होता है बाइनैप और एक होता है बाइनल, ठीक है। ऐसे ये दो अलग अलग रिएजेंट है जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बाइनल का काम क्या होता है, सो बाइनल कन्वर्ट्स सिलेक्टिवली, बाइनल converts selectively carbonyl into the alcohol. This is the product of your reaction, okay. This is a carbonyl, okay. This is what carbonyl. Next है आपका अल्पाइन बोरेन। अल्पाइन बोरेन is belong to the again
कायरल बोरेन में जाता है और ये सेलेक्टिवली आपका जो कंपाउंड है, सो हाउ मेनी कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 पर आपका वो दिया हुआ है, ऐसा आपका प्रोडक्ट आपका रहेगा इस केस में, दैट्स कॉल्ड दी कायरल बोरेन नाउ। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। नेक्स्ट इसको और में क्या था आपका, इसके और में आपको अगेन असिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ए असिमेट्रिक अमाइनो हाइड्रोक्सिलेशन। क्या नाम है इसका, असिमेट्रिक अमाइनो हाइड्रोक्सिलेशन। अब असिमेट्रिक अमाइनो हाइड्रोक्सिलेशन में जैसे हमने वो देखा है dihydroxylation. You know that dihydroxylation means we are converting that olefin into what the diol. ये भी आप सिमेट्रिक असिमेट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे वाला। Similarly, where the olefin get converts into what the what one can say amino hydroxyl group now, means amino hydroxyl group is there at the position of one position पे आपका वो रहेगा, that is called as an OH group, and here we can see the structure of the amino hydroxylation here. So now you can see this reaction now particularly. असिमेट्रिक अमाइनो हाइड्रोक्सिलेशन में कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट यूज किए गए। ये भी रिएक्शन आपकी शार्पलेस ऑक्सी अमाइनेशन में जाती है, जिसको शार्पलेस अमाइनो हाइड्रोक्सिलेशन बोला जाता है। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्किन का कन्वर्शन हम क्या करते हैं, विसिनल का मतलब 1-2 पोजीशन पे अमाइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो अल्कोहल में करते हैं, विसिनल अमाइनो अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलरली ये रिएक्शन जो है ये आपको आगे भी पूछी गई है, इसके लिए जो रिएजेंट आपको लगते हैं वो आपका चाहिए आपका, दैट विल बी कॉल्ड एज RNCINA and in the presence of what, the catalytic osmium tetroxide. So that reagent produces what, the NH2 now, that reagent which produces the NH2 now. So basically इस तरह का इसका रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन आपकी होती है यहाँ पे। सो ये भी आपने शायद मेंशन किया होगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन आपको पूछी गई है, दैट्स कॉल्ड द कोरी गिलमन। व्हाट इज दैट, कोरी गिलमन, और आगे क्या दिया हुआ है, गैनेम। सो कोरी गिलमन एंड गैनेम रिएक्शन। सो दिस इज ऑल्सो द asymmetric reaction where we are converting, again it belong to the asymmetric synthesis which is developed by 3 people. One is Corey, second is what, Gilman, Corey, Gilman and what, the Ghanem reaction. अब इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स बनाते हैं फ्रॉम दी वर्ड अल्डिहाइड या फिर अलाइल अल्कोहल। तो इसमें आप दो यूज़ कर सकते हैं, एक तो आपके पास अलाइल अल्कोहल होगा, विच वन, अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल मतलब ये हो गया, या तो फिर आपके पास अल्डिहाइड चाहिए होते हैं और वी कैन यूज दैट अल्डिहाइड। सो फ्रॉम दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू अल्डी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, इसमें आपका जनरली एज ए प्रोडक्ट होता है। वेरी वेल नोन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में अगर आपने देखा होगा तो हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो रिएजेंट हमारा होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द KCl, ओके, एंड मिथेनॉल इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है, और इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड का कन्वर्शन डायरेक्टली किस में होता है, आपका एस्टर में हो जाता है, राइट। अल्डिहाइड इज कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, द एस्टर नाउ। ठीक है, मैकेनिज्म आप देखना है तो सिंपल अल्डिहाइड के ऊपर पहले साइनाइड की रिएक्शन करना है, फिर MnO2 के साथ रिएक्शन होगी एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, द एस्टर नाउ। ओके, ऐसा इसका मैकेनिज्म है। आप अगर कोई रेफरेंस बुक देख लोगे तो इसका मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। चलिए क्यू पे आते हैं। बेकरिस्ट एक टाइप का एंजाइमेटिक रिडक्शन में जाता है वो, और एंजाइमेटिक रिडक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कार्बोनिल कन्वर्शन आपका जो है वो S अल्कोहल में आपका होता है, दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स गेट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, द S अल्कोहल। सो यू कैन सी
one of the carbonyl group will selectively converts into what the alcohol now. Okay, ऐसे अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि दिस रिएक्शन इट कन्वर्ट्स इन द रिएजेंट यूज्ड फॉर द व्हाट अमाइनो हाइड्रोक्सिलेशन. सो हियर this is what NHR and here will be what OH. ऐसा आपका बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, राइट. फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के हिसाब से आपके पास दो नॉमेनक्लेचर, हैंस मिडमैन नॉमेनक्लेचर आप यूज कर सकते हैं इसके लिए. एंड सिंपल से दो आपको कंपाउंड दिए गए थे यहाँ पे. दे आर इपॉक्साइड डेरिवेटिव. यू कैन इजीली फाइंड द नेम ऑफ दिस टू कंपाउंड्स. चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं. द क्वेश्चन फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, predict the product of the following reaction now. So here it is particularly from the D protection and D protection में हम अगर हम देखेंगे इसको तो this there are two protecting groups are there. One is FMOC and second is what the BOC है ना. आपने डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन देखे होंगे और डी प्रोटेक्शन के साथ में हमको करना होता है जनरली. सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं आपके, पाइप्रिडीन हम कब यूज करते हैं? पाइप्रिडीन इज द बेस विच इज यूज टू डी प्रोटेक्ट द एफ-मॉक ग्रुप नाउ. यानी कि जो सिलेक्टिवली हम एफ-मॉक ग्रुप जो है आपका, इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम पाइप्रिडीन का यूज करते हैं. यानी कि जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका जो रहेगा आपका, नाउ सी दिस इज व्हाट CD3, दिस इज व्हाट NH एंड हियर इज द BOC नाउ. ओके, ये आ गया ऐसे आपका. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? नाउ सी हियर दिस विल बी NH2. सो रिमूवल ऑफ दैट एफ-मॉक ग्रुप इज डन with the help of what the piperidine. Now this is a piperidine. What is F-MOC? It is a fluoroenyl methoxycarbonyl. ओके, जो फ्लोरीन होता है आपने एरोमेटिक सिटी में जब पढ़ा होगा कहीं पे, फ्लोरीन का मतलब हो गया ये वाला कंपाउंड. ठीक है. सो ये वाला कंपाउंड होता है इसके अंदर और यहाँ पर कहीं तो आपका ऑक्सीजन रहेगा एंड हियर विल बी C डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बी NHR. दिस विल बी व्हाट NHR. इस कंपाउंड को बेसिकली बोला जाता है F-MOC. ओके, दैट इज यूज पर्टिकुलरली फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ डी. हाँ, पाइप्रिडीन इज यूज पर्टिकुलरली फॉर द. और F-MOC कहाँ यूज हो गया? F-MOC आपका प्रोटेक्शन के लिए हो गया और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये यूज कर सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड? अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द माइकल लांस है ना. प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन अगर आपने देखा होगा तो उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है. यू कैन प्रोटेक्ट दैट कार्बोनाइल. नेक्स्ट है आपका DCC के साथ आपका मैकेनिज्म. DCC क्या है? डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बिडोइमाइड. डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बिडोइमाइड. N double bond C double bond N and this is what the cyclohexane. This is called dicyclohexyl carbidoimide and this reagent is used to take the water molecule. यानी कि डी प्रोटेक्शन ये सॉरी क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए इसका ज़्यादातर यूज होता है. दिस इज व्हाट NH C double bond O another NH and here will be the dicyclohexyl urea is the byproduct. फिर कई सारे हम एसिड टू अमाइड कर सकते हैं, एसिड टू ईस्टर कर सकते हैं वगैरह वगैरह. ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे, राइट. ओके, अब समटाइम व्हेन अ BOC. अब देखो क्या क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझो कि क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है कि समटाइम व्हेन अ BOC ग्रुप इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ हाईली फंक्शनलाइज्ड मॉलिक्यूल, PHSH is added to the deprotection reaction, suggest the reasonable role for the additive. अब PHSH का जो रोल होगा इसमें वो आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द PHSH, यानी कि आपका फेनिलथायोल जो है इसका क्या रोल होता है एज ए एडिटिव. ये आपको यहाँ पर दो सेंटेंस में इसको लिखना था यहाँ पर कि कहाँ पर डी प्रोटेक्शन के लिए रोल ऑफ व्हाट डी रोल ऑफ PHSH. ठीक है, इन द प्रोटेक्शन.
सो अब इस केस में थोड़ा सा लिटरेचर वगैरह इसमें देखना होता है कि व्हाट इज द यूज़ ऑफ द पर्टिकुलरली द PHSH। ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट जनरली हम लोग इसमें किस तरह का आंसर इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन ऑफ, आई थिंक दिस इज यूज टू इनहांस द रिएक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको इसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, राइट, ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टू दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ CbZCl। CbZCl का रोल क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन ग्रुप, तीन फंक्शन ग्रुप दिए हैं, एसिड, ओके, देन है आपका अमाइन, ठीक है, और उसके बाद है आपका यहाँ पर OH, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो CbZ, क्या नाम है इसका, CbZCl, राइट। सो CbZCl जो है, ये स्पेशलिटी क्या है CbZCl की, विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द अमीन, नॉट फॉर द अल्कोहल और नॉट फॉर द एसिड नाउ, ओके। सो रिमेंबर, और CbZCl का डी प्रोटेक्शन जो है वो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द सिंपल H2PDC ना। सो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, दिस विल बी माई OH, दिस इज व्हाट NH CbZ, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, नाउ सी दिस इज व्हाट द एसिड। सो टू प्रोटेक्ट दैट अमीन ग्रुप, सो वी हैव टू यूज द CbZCl, ओके। और डी प्रोटेक्शन अगर करना है आपको तो H2PDC कर सकते। नेक्स्ट है आपका डाइजोमेथेन। अब डाइजोमेथेन का काम क्या होता है, इट इज़ अ मिथाइलेटिंग एजेंट। सो डाइजोमेथेन इज अ मिथाइलेटिंग एजेंट, सो इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, CO, and here will be what, CH3। so CH2 will be incorporated into what, the oxygen and hydrogen, ऐसा हो जाएगा आप, ओके। नेक्स्ट है आपका कमेंट ऑन द कीमो एंड रिजियो सेलेक्टिव डी प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सो अगर आप ये क्यू का एग्जांपल देखते हैं, क्यू का जो पहला एग्जांपल अगर आपने देखा है, तो इसमें तीन फंक्शन ग्रुप है, और हमारा जो CbZCl है ये सिलेक्टिवली अमीन के साथ ही आपका प्रोटेक्ट हो रहा है, राइट। तो ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल उसमें मेंशन करने होते हैं कि एटलीस्ट वो कीमो और रिजियो सेलेक्टिव, रीजन का मतलब, कीमो का मतलब हो गया पर्टिकुलरली फंक्शन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, और रिजियो का मतलब हो गया रीजन्स के बारे में बात करें, यानी कि 1 2 1 4 पोजीशन लाइक दैट, ओके। तो वहाँ पर आपको दो तीन एग्जाम्पल आपको मेंशन करने हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम आते हैं, नेक्स्ट का कमेंट ऑन गिव द एप्लीकेशन ऑफ सल्फर एलाइड एज इपॉक्सीडेशन एंड साइक्लोप्रोपेनेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब सल्फर एलाइड का जो है, ये मेन पर दो टाइप के सल्फर एलाइड होते हैं, एक होता है आपका स्टेबलाइज सल्फर एलाइड, और दूसरा होता है आपका डिस्टेबलाइज सल्फर एलाइड, ओके, ये वाला है। और दूसरा कौन सा है आपका, सल्फर ऑक्साइड के साथ अगर हमने लिया है तो ये वाला आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है, CH2 नेगेटिव एंड दिस विल बी द पॉजिटिव। सो लुक एट दिस टू रिएजेंट, एंड दीज रिएजेंट्स आर पर्टिकुलरली, अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बोनिल के साथ करते हैं, सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, इपॉक्साइड आपको मिलेगा। बट व्हेन वी हैव कंजुगेटेड कार्बोनाइल, मैं इस साइड में लिखता हूँ यहाँ पर कहीं, तो व्हेन वी हैव कंजुगेटेड कार्बोनाइल, कि अगर मेरे पास अगर कंजुगेटेड कार्बोनिल अगर होगा, सपोज आई हैव दिस मॉलिक्यूल दैट्स कंजुगेटेड वन, और इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ हमारे सिंपल सल्फर एलाइड की, ठीक है। सो व्हाट हैपन टू दिस, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, नाउ यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज विल बी गोइंग टू रिएक्ट एट हियर नाउ एंड इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट इज हियर नाउ। सो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस केस में ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। बट व्हेन आई यूज दिस स्टेबलाइज सल्फर एलाइड, स्टेबलाइज सल्फर एलाइड का मतलब होता है तुम्हारा जहाँ पर हमने सल्फो ऑक्साइड बनाया है, सल्फो ऑक्साइड हियर। नाउ सी this negative charge is going to react at the 1,4 position now, and so resulting product will be what, the cyclopropane here. You can see the difference in these two reaction now, that's why this sulfur halide is used particularly in the क्या बोल सकते हैं उसको, साइक्लोप्रोपेनेशन में भी यूज होता है वो, और वो इपॉक्सीडेशन के लिए भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, वेयर आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या है आपके पास, you have this
रिएक्टेंट आपके पास दिया हुआ है जिसमें आपका फॉस्फीन लगा हुआ है, ट्राइफिनिल फॉस्फीन लगा हुआ है, बेस हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सो इट विल टेक द प्रोटॉन, इट विल कन्वर्ट्स इनटू फास्फोरस एलाइड। क्या बन गया आपका, बेस डालने के बाद आपका क्या हो रहा है, एलाइड बन जा रहा है, और एलाइड क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, सो दैट मीन दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी हियर एंड ऑक्सीजन निकल जाएगा आपका, सो इट दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, द इंडोल मॉलिक्यूल नाउ, सो एक इंडोल सिंथेसिस है ये, क्या है ये बेसिकली, दिस इज व्हाट द इंडोल, यहाँ पर आपका एन रहेगा और दिस इज माय डबल बॉन्ड, ओके, so this is what NH and somewhere this is what the R now, so this is the synthesis given by what, the indol। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी एक सल्फर एलाइड है आपका दिया हुआ, बस इसको आपको चार्ज लिखने पड़ेंगे, दिस इज प्लस एंड माइनस, सो ये स्टेबलाइज नहीं है आपका, डिस्टेबलाइज होगा ये, और डिस्टेबलाइज एलाइड क्या करता है, इट गोइंग टू रिएक्ट ऑन टू द 1,2 पोजिशन नाउ, रिमेनिंग डबल बॉन्ड आपका वैसे ही रहेगा, एंड सो इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, दिस CH2 नाउ, सो साइक्लोप्रोपेनेशन इपॉक्सीडेशन में आपका ये प्रिफरेंशियली आपका जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक में भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो रिएजेंट है ये ऐसा नहीं है, राइट, सो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर ये हो गया कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस नाउ, सो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया एन ब्यूटिल एलाई, ठीक है, एन ब्यूटिल लिथियम ये हमने लिया है, और एन ब्यूटिल लिथियम जब हम यूज़ कर सकते हैं तो देयर मस्ट बी अ THF ना, सो दिस मस्ट बी अ T एट विच टेम्परेचर, एट माइनस टेम्परेचर, तो सबसे पहले काम क्या होता है, इट टेक द प्रोटॉन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट ही है वापस से, पहले अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, तो आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका डायथाइन, ठीक है, विच इज बिलोंग टू द अम्पोला, ये बन गया आपका, और नाउ सी दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी रिएक्ट ऑन टू द PHC, तो अब उस कार्बन पे रिएक्ट हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका क्या बन रहा है, नाउ सी दिस विल बी कार्बोनाइल, और यहाँ पर आपका OH बन गया, और ये रहा मेरा pH, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द योर रिएक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कमेंट ऑन दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विच कंपाउंड, अजीरिडीन आपको पूछा गया है, सो अजीरिडीन कैसे होता है, 3 मेंबर रिंग वाला जो कंपाउंड होता है ना वो आपका अजीरिडीन हो गया, राइट। अब इसकी क्या क्या लिखना है आपको, इसका आपको लिखना है सिंथेसिस, इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और इसके कुछ रिएक्शंस, ठीक है। अब अजीरिडीन कंपाउंड वेल नोन कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5, यहाँ पर H आ गया, कितना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H5N है आपका, मतलब आप उसके अकॉर्डिंग भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, छोटा सा रिंग है, स्ट्रेन मॉलिक्यूल होता है आपका, राइट, और इसके कई सारे आपको सिंथेटिक मेथड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल आप डबल बॉन्ड के ऊपर हम नाइट्रोजन की रिएक्शन करा के भी इसको प्रोड्यूस करा सकते हैं, सिंथेसिस आपको बताना है, और एटलीस्ट 1-2 रिएक्शंस उसके, अब 1-2 रिएक्शंस में क्या है कि ये रिंग स्ट्रेन है तो आप आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है, एंड देयर आर वेरियस मेथड फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर दिस कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड द एजिरिडीन। सिमिलर क्वेश्चन नीचे आपका आया हुआ है, दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीरिन, अब ऑक्सीरिन भी वेल नोन कंपाउंड है, दैट्स कॉल्ड द इपॉक्साइड, कई सारे मेथड है, और यहीं पर आपको मेथड दिए गए देखो प्रिपरेशन की, ना दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, और ये क्या करता है, ओलिफिन का ऑक्सीडेशन करता है, और ये इपॉक्साइड, मतलब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर आंसर दिया हुआ है, लाइकवाइज पेपर आपका ऐसा है, राइट, सो आप मतलब जो जिन्होंने सच में पढ़ाई की है ना उनके लिए ये पेपर बहुत ही आसान पेपर था, राइट, और ऐसा मुझे लगता है, राइट, ओके, सो इसमें भी ऑक्सीजन का सिंथेसिस आपको देना है, नॉमेनक्लेचर करना है, एंड कुछ 1-2 रिएक्शंस आपको बताने कि जैसे इपॉक्साइड ओपनिंग एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कैसे होती है। चलिए फर्दर हम आते हैं इधर, ये जो इपॉक्साइड आपको दिया है इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, देखो ऊपर की रिएक्शन ऑक्सीजन की रिएक्शन नीचे भी दे सकते, सो NaN3 ओपन द इपॉक्साइड, इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट यहाँ पर, so this will be what, N3, this is R and R, and now you can see, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, PPS3 का रोल क्या होता है, इट इज ए selective reagent for converting N3 into NH2 now, and that reaction is called as a Stautinder reaction, okay, so थोड़े रिएक्शन भी इसमें अंदर थे, ये ऐसा आपका प्रोडक्ट इसमें बनता है, मीन्स अमाइनो अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ना, विसिनल अमाइनो अल्कोहल। कमेंट ऑन द एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, सो एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स में हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 मेंबर रिंग से,
यहाँ पर मैं x लगा देता हूँ और x के जगह पे मैं लिखता हूँ NH, ऑक्सीजन, सल्फर. इफ NH इज देयर इट विल बी पायरोल, इफ O इट विल बी फ्यूरॉन, इफ S इट विल बी अ थायोफीन. ठीक है, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल हो गए लेकिन 5 मेंबर वाले. फिर हम आते हैं 6 मेंबर की तरफ. 6 मेंबर में आपका पिरिडीन है. उसके बाद हम आपके पास इंडोल आपको सिलेबस में है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. इंडोल इज एन बेंजोपायरोल. ठीक है, क्यूनोलिन आप दे सकते हैं यहाँ पे, बेंजोपिरिमिडिन का एग्जांपल है. अब नॉन एरोमेटिक में कौन आता है आपका? इट इज़ 3 मेंबर रिंग, जैसा हमने ये लिया है, ये आप मेंशन कर सकते हैं. ऑक्साफॉस्फेटिन हमने बताया अभी, ये आप ले सकते हैं. वहाँ पे कई सारे एग्जांपल आप नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल में डाल सकते हैं इसके अंदर. ओके, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि उसमें एरोमेटिक नेचर है तो हकेल रूल होगा, स्टेबिलिटी रहेगी वगैरह वगैरह. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में वो है आपका फिशर इंडोल सिंथेसिस. आपको पता है कि फिशर ने एक इंडोल की सिंथेसिस दी थी, और जो फिशर होता है ना, ये सॉरी जो इंडोल होता है ना, ये एक बायो एक्टिव हेट्रोसाइकिल है. यानी कि अगर हमने कुछ अमाइनो एसिड अगर आपने देखे होंगे अमाइनो एसिड, तो इंडोल वाला एक अमाइनो एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन. राइट, ट्रिप्टोफैन इज देन ट्रिप्टोफैन ही है ना, करेक्ट. ट्रिप्टोफैन जो है एक ट्रिप्टोफैन, यस, उसमें इंडोल होता है. दैट्स व्हाई इट इज अ बायोएक्टिव हेट्रोसाइकिल. और इसका जो सिंथेसिस है ना वो दिया था किसने? फिशर ने. और फिशर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? 3-3 जो है ये सिग्माट्रोपिक शिफ्ट का एग्जाम्पल है. बराबर है, किसका एग्जाम्पल है? 3-3 जो है वो सिग्माट्रोपिक शिफ्ट का मैकेनिज्म वहाँ से प्रोसीड होता है. और इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो अरिल हाइड्राजोन है. आपने मैकेनिज्म देखा होगा, अरिल हाइड्राजोन के साथ थोड़ा सा एलिमिनेशन वगैरह होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन आपकी होगी. और अगर आपको लगता है कि फिनिल हाइड्राजोन कैसा होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. फिनिल आपको निकालना है, सी दिस इज वॉट NH2, और इसकी रिएक्शन आपको करनी है किस साथ में? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में. सो दैट विल फॉर्म द हाइड्राजोन. और फिर फर्दर रिएक्शन आपकी वगैरह वगैरह इसमें बढ़ती है, आगे बढ़ेगी. ठीक है, आप मैकेनिज्म इसका देख लो. नेक्स्ट है आपका बिचलर नेप्रेक्सिफ और आइसोकिनोलिन. देखो आपके पास 2 आइसोमर है फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल के. एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका नाम है क्यूनोलिन. क्यूनोलिन जो है ये कहाँ से आया हुआ है आपका? नैप्थेलिन से आपके आइसोमर है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके. राइट, चलिए ये 2 कंपाउंड हमको सिलेबस में है. एक हो गया आपका क्यूनोलिन और दूसरा हो गया आपका आइसोक्यूनोलिन. तो क्यूनोलिन का सिंथेसिस जो है ये स्क्रप ने दिया हुआ है, और आइसोक्यूनोलिन का सिंथेसिस जो है वो बिचलर नेपियर्स्की ने दिया हुआ है. ठीक है, तो आप दोनों का मैकेनिज्म देख लो, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. राइट, नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू सिंथेसिस ऑफ 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल. P2O5 H2SO4 अगर हम यूज़ करेंगे, सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर कंपाउंड. क्या मिलेगा आपको? द फ्यूरान विल बी फॉर्म. और अगर आपके पास ऑलरेडी फ्यूरान सिंथेसाइज्ड है, लेकिन हम एल्यूमिना और हीट के प्रेजेंस में अमोनिया की रिएक्शन अगर करते हैं, सो इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? दी पायरोल नाउ. सो लाइकवाइज हमको यहाँ पर 2 ऐसे क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट हमको मिल सकती है. देखो वापस से क्वेश्चन आपका आ गया. सिंथेसिस ऑफ स्क्रप क्यूनोलिन का दिया है, और इमिडाजोल. इमिडाजोल का मतलब क्या है? इमिडाजोल इज अ डायाजोल, और डायाजोल का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ 1,3 डायाजोल. ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. इसमें लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. नाउ अब नाउ सी द कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी. बेसिक आपका यहाँ पर यूज़ किया है, सो इट इज़ पर्टिकुलरली फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ क्या दिया है आपको? सिंथेसिस ये आपको ऐसा दिया है आपका. राइट, और दूसरा आपको क्या करना है? बर्च रिडक्शन करना है आपको. अब बर्च रिडक्शन किसका होगा? ये भी एक रिंग होती है, ये भी एक रिंग है, बट हम बर्च रिडक्शन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एज ए रिलीजिंग स्पीसीज. रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है? इलेक्ट्रॉन है. सो इलेक्ट्रॉन कौन से रिंग पे जाना चाहिए? ये वाली जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, एंड ये वाली क्या आपकी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. तो हम जो है वो किसका कर सकते हैं रिडक्शन? जिस रिंग पर आपका क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस रिंग का क्या हो जाएगा? आपका रिडक्शन हो जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट. तो ऐसा आपका